Hello my dear students, good evening. We'll discuss today the chemical properties of carbon compounds. In the previous classes, we had discussed regarding the basics of the chapter carbon and its compound. We had discussed hydrocarbons, we had discussed isomerism, we had discussed the functional groups. We will discuss today the chemical properties of carbon compounds. So we will discuss chemical properties of carbon compounds. Mainly we will discuss here the 5 chemical properties. The first one, it is combustion. Second one, it is oxidation. And third one, esterification. Fourth one, addition reaction. Fifth one, substitution reaction. So these are the 5 chemical properties of carbon compounds. We'll discuss these chemical properties one by one. The first one I am taking combustion. Now there are 3 conditions for combustion to occur. The necessary conditions for the combustion. पहला है a combustible substance. मतलब जो सब्सटेंस है वो जलने वाला होना चाहिए. एक लकड़ी जलेगी, कागज़ जलेगा, फ्यूल ऑयल जलेगा, पेट्रोल जलेगा, पेट्रोलियम गैस जलेगी, पत्थर नहीं जलेगा. सो देयर शुड बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. सेकेंड वन, द सपोर्टर ऑफ कंबशन. And the supporter of combustion is what? It is oxygen. And third one, the optimum ignition temperature. The minimum temperature at which a substance catches fire is known as ignition temperature. अगर ये 3 conditions satisfied होती है, so there will be the combustion. We discuss here the property combustion regarding hydrocarbons. What happens if the hydrocarbons burns in the sufficient supply of air or oxygen, or the insufficient supply of air or oxygen? What happens in the case of saturated hydrocarbons, and what happens in the case of unsaturated hydrocarbons? So we will discuss the combustion property in detail. Saturated hydrocarbons on burning in sufficient supply of air or oxygen. That is what happens when the saturated hydrocarbons are burned in the sufficient supply of air or oxygen. We take saturated hydrocarbons like methane, like ethane. When they burns in the sufficient supply of oxygen, they give CO2 plus H2O plus
heat and light will be released, लेकिन यहाँ पर जो फ्लेम होगा it will be a non-sooty flame. It will be a non-sooty flame or non-smoky flame. The question is कि when the saturated hydrocarbons are burnt in the sufficient supply of air or oxygen, why there is a non-sooty flame or non-smoky flame? उस फ्लेम में धुआं क्यों नहीं होगा? सूटी का मतलब है धुआं. It will be a non-smoky flame or it will be a non-sooty flame. That is because of high carbon hydrogen ratio. यहाँ पर मीथेन के केस में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो रेशियो हो गया है 1:4. इथेन के अंदर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो रेशियो हो गया है 1:3. यहाँ पर हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है. हाइड्रोजन इज़ द एक्सीलेंट फ्यूल. Hydrogen burns at instant and releases large amount of energy. Hydrogen has the highest calorific value. Hydrogen has the highest calorific value. Because of its high calorific value, energy release ज़्यादा होगी, combustion complete होगा, और combustion अगर complete होगा, proper होगा, तो जो flame होगी उसके अंदर धुआं नहीं होगा. There will be a non-sooty flame or non-smoky flame. तो हम ये कहें कि यहाँ पे थोड़ा सा हम एक एलिमेंट ऐड कर दें, दैट हाइड्रोजन इट हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट इज़ 150 किलो जूल्स पर ग्राम. साथ में यहाँ पर जो फ्लेम बनेगी, दिस फ्लेम विल बी नॉन लुमिनस फ्लेम. This flame will be non-luminous flame. That is, ये फ्लेम उजाला नहीं देगी. अरे भाई, घरों के अंदर हम पेट्रोलियम गैस, घरों में हम सिलेंडर्स के अंदर जो गैस यूज करते हैं वो होती है LPG. It is liquefied petroleum gas. It is actually a petroleum gas, and the petroleum gas is made up of the ethane plus propane plus butane. वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, और जो गैस का बर्नर है उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं. उन पोर्स के अंदर देयर इज अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन. ड्यू टू द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन देयर इज कंप्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन होगा तो जो फ्लेम होगा वो नॉन सूटी फ्लेम होगा, नॉन स्मोकी फ्लेम होगा. इसीलिए हम गैस के ऊपर कुकिंग करते हैं तो बर्तन काले नहीं पड़ते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर. लेकिन अगर लाइट चली गई, इतना बड़ा बर्नर जल रहा है, इतना गैस की फ्लेम आ रही है, फिर भी उजाला नहीं होगा. यू नीड ए हेल्प ऑफ कैंडल फ्लेम. तो क्योंकि कैंडल फ्लेम है वो लुमिनस फ्लेम है, और जो हमारा गैस की जो LPG का है वो एक नॉन लुमिनस फ्लेम है. ओके, तो इसकी जो फ्लेम होगी वो नॉन लुमिनस होगी एंड इट विल बी ब्लू कलर्ड. इट विल बी ब्लू कलर्ड. और ध्यान रहे कि जो ब्लू कलर का फ्लेम है वो होता है हॉटेस्ट. इट इज ऑलवेज हॉटेस्ट. सो दिस इज अबाउट that what happens when the saturated hydrocarbons are burning in sufficient supply of air or oxygen. तो फ्लेम की कैरेक्टरिस्टिक ये होंगी. नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट 1 हो गया है. पॉइंट 2 हम लेते हैं. unsaturated hydrocarbons on burning in sufficient supply of air or oxygen. Unsaturated hydrocarbons on burning in sufficient supply of
एयर और ऑक्सीजन। हम लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हम ले लें मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स, द मेंबर्स ऑफ अल्काइंस। तो हमने लिया C2H4, दिस इज एथीन, C2H2 it is ethine. When they burns in the presence of oxygen, they converts into CO2 plus H2O plus heat and light, लेकिन यहाँ पर जो फ्लेम होगी it will be a sooty flame, it will be a sooty flame, that is what, it will be a smoky flame. इस फ्लेम के अंदर धुआं होगा। द क्वेश्चन इज इस फ्लेम के अंदर धुआं क्यों होगा? बिकॉज ऑफ लो कार्बन हाइड्रोजन रेशियो, दैट इज बिकॉज ऑफ लो कार्बन hydrogen ratio. You compare it with the saturated hydrocarbons of 2 carbon, and I am comparing these unsaturated hydrocarbons, they are containing 2 carbon. यहाँ पे रेशियो होगा कार्बन और हाइड्रोजन का 1:2 जो इससे कम है, और यहाँ रेशियो होगा 1:1 जो कि इससे कम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परसेंटेज कम है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कम होगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज कम होगा तो क्या होगा कि कंबशन जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, और कंबशन अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फ्लेम के अंदर क्या होगा, अनवन कार्बन पार्टिकल्स होंगे, वो फ्लेम के अंदर जंप करेंगे और उजाला जरूर देंगे, लेकिन फ्लेम के अंदर क्या होगा, धुआं होगा। सो इट विल बी ए सूटी फ्लेम और इट विल बी ए स्मोकी फ्लेम। सो द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑन बर्निंग इन sufficient supply of air or oxygen, they give sooty flame और smoky flame, but ये एक luminous flame होगी, it will be a luminous flame and it is yellow colored, and it is yellow colored. Now हमने 2 पॉइंट डिस्कस करे कि द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो फ्लेम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगी, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो फ्लेम की कैरेक्टरिस्टिक ये होंगी। लेकिन इफ वी हैव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स and they are burnt in insufficient supply of air और ऑक्सीजन, तो फ्लेम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगी। मतलब ये हुआ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन insufficient supply of air or oxygen, in the insufficient supply of air और ऑक्सीजन, तो फ्लेम की कैरेक्टरिस्टिक ये होंगी। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब if the saturated hydrocarbons they are burnt in the insufficient supply of air और ऑक्सीजन, तो जो फ्लेम होगा वो सूटी फ्लेम होगी और स्मोकी फ्लेम होगी, लुमिनस फ्लेम होगी, येलो कलर्ड होगी। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा ये डेली लाइफ का एक एप्लीकेशन है कि अगर हम केरोसिन तेल को जलाते हैं लालटेन के अंदर या केरोसिन लैंप के अंदर, तो जो फ्लेम होगा वो सूटी फ्लेम होगा, धुआं होगा, लेकिन उसमें उजाला होगा। क्यों? क्योंकि लालटेन के अंदर या केरोसिन लैंप के अंदर वहाँ पर इस तरह से एडजस्टमेंट करी जाती है जहाँ पर फ्लेम जलता है उसके पास में कि एयर की सप्लाई है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो, एयर की सप्लाई है वो partial हो, incomplete हो, and when there is a insufficient supply of air or oxygen, kerosene contains the saturated hydrocarbons, they on burning they give sooty flame और smoky flame। तो आप देखें कि लालटेन को या केरोसिन लैंप को अगर हम एक रूम के अंदर जलाते हैं तो वी फील सफोकेटेड, एक धुआं सा हो जाएगा। अब तुम्हें क्या पता है लालटेन क्या होती है, केरोसिन लैंप क्या होता है, वो हमें पता है,
तुम्हें लाइट गई और इन्वर्टर से लाइट आ गई, तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि लालटेन को कैसे यूज़ करते हैं या केरोसिन लैम्प को कैसे यूज़ करते हैं, बट यू मस्ट हैव द नॉलेज, सीखना जरूर चाहिए, देखना जरूर चाहिए कि कहाँ पर क्या होता है। उसी केरोसिन तेल को अगर हम केरोसिन स्टोव में यूज़ करते हैं, स्टोव होता है एक छोटा सा स्टैंड होता है, उसके साइड में एक टैंक होता है, टैंक के अंदर पिस्टन से हवा भरते हैं और उसका जो स्टैंड होता है उसके अंदर एक बर्नर होता है, हम उसको ऑन करके माचिस की तीली लगाते हैं तो वहाँ पर ब्लू कलर का फ्लेम आता है, क्योंकि हमने टैंक के अंदर हवा भरी है, तो वहाँ पे एयर की सप्लाई सफिशिएंट है, और एयर की सप्लाई सफिशिएंट है तो द हाइड्रोकार्बन्स ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन दे गिव नॉन सूटी फ्लेम, नॉन स्मोकी फ्लेम। तो केरोसिन स्टोव के ऊपर हमारा जो बर्तन होगा वो काला नहीं पड़ेगा और जो फ्लेम होगी वो नॉन लुमिनस होगी। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि केरोसिन तेल को अगर हम लालटेन में यूज़ करते हैं या उसको लैंप में यूज़ करते हैं तो वो सूटी फ्लेम देता है और वो एक लुमिनस फ्लेम देता है। उसी केरोसिन तेल को अगर हम यूज़ करते हैं केरोसिन स्टोव के अंदर तो इट गिव्स ए नॉन सूटी फ्लेम और नॉन स्मोकी फ्लेम। ओके, तो इसी के ऊपर फिर एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ द एल्कोहल्स आर बर्न्ड तो फ्लेम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगी। इफ द एल्कोहल्स आर बर्न्ड तो फ्लेम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगी। तो हम ये लिखें, इसको मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वी हैव C2H5OH, दिस इज एथेनॉल, ये शराब का फॉर्मूला है C2H5OH। यहाँ पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 और एक 6 है, हाइड्रोजन 6, साथ में ऑक्सीजन है। तो कार्बन हाइड्रोजन रेशियो इसके बराबर है, मतलब ये रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। साथ में ऑक्सीजन है दैट सपोर्ट्स कंबशन। सो एल्कोहल्स ऑन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन दे विल गिव नॉन सूटी फ्लेम और नॉन स्मोकी फ्लेम, एंड ये नॉन लुमिनस फ्लेम होगा, ब्लू कलर का फ्लेम होगा एंड हॉटेस्ट होगा। देखा मैंने बचपन के अंदर 4 शराबी शराब पीते हैं, जब बोतल खाली हो जाती है तो उस बोतल के अंदर थोड़ी शराब बच जाती है तो माचिस की तीली उसमें डाल देते हैं, उसमें एक फ्लेम निकलता है, मदहोश हुए रहते हैं और उसके साथ साथ गाने गाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक combustion. And now we'll discuss the second property, and the second property is oxidation. We have discussed the first property, that is what combustion, and we will discuss the second property, that is what oxidation. Oxidation means addition of oxygen to a substance, addition of oxygen to a substance is known as oxidation. Oxidation दो तरह का है, the one is complete oxidation and another one incomplete or partial oxidation. What happens in complete oxidation? We take alcohol, it combines with oxygen in the presence of alkaline KMnO4. It is potassium permanganate
that is alkaline. Alkaline means in the basic form, in the basic form. Or acidified K2Cr2O7, this is potassium dichromate, and we'll get the कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी। आपने ये कॉन्सेप्ट देखना है कि ऑक्सीडेशन मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दो तरह का है, द वन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अनदर वन इनकम्प्लीट और द पार्शियल ऑक्सीडेशन। व्हाट हैपन्स इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन? अल्कोहल, it reacts with oxygen in the presence of alkaline KMnO4, either alkaline KMnO4 or either acidified K2Cr2O7, this is potassium dichromate. Then alcohol will combine with oxygen and will get carboxylic acid. That is, this reaction will occur by the addition of oxygen molecule. तो यहाँ पर जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। What happens in incomplete oxidation or partial oxidation? We have alcohol, it combines with oxygen in the presence of CrO3. ये है chromic anhydride. This is chromic anhydride. It is chromic anhydride in glacial acetic acid. In glacial acetic acid. Acetic acid, that is what? CH3COOH, इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट ऑन फ्रीजिंग, इट लुक लाइक द ग्लेशियर ऑफ आइस, सो दिस इज नॉन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। द एसिटिक एसिड, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट ऑन फ्रीजिंग, it look like the glacier of ice, so this is known as glacial acetic acid. The alcohol will combine with oxygen in the presence of chromic anhydride and it will form aldehyde. That is, जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने कार्बन का अल्डिहाइड बनेगा। तो अल्कोहल का अगर इनकम्प्लीट और पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, और अल्कोहल्स का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। विल एक्सप्लेन इट बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया, एक कार्बन और दो कार्बन, ये दो कार्बन का हमने अल्कोहल ले लिया। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, उसका मीनिंग ये हुआ इन वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल द टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, बोथ विल बी एडेड हियर। दैट इज दिस रिएक्शन विल अकर बाय द एडिशन ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस रिएक्शन विल अकर बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से H2O है वो बाहर निकल जाएगा, बाकी का जो बचा हुआ उसको एज इट इज़ लिख देंगे। इट इज़ CH3C ... CH3C ... ऑक्सीजन का आइटम दो है तो 1 and 2, 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 यानी इथेन, इथेन प्लस ओइक एसिड, दिस बिकम द एथेनोइक एसिड, और ये है एथेनॉल। तो एथेनॉल से बन गया है एथेनोइक एसिड। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐसे लिख दो तो ठीक है, चाहे ऐसे लिख दो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है।
अरे भाई यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं जस्ट टॉपिक को सिंपल बनाने के लिए। ये तो इस कैटलिस्ट का काम है कि इस कैटलिस्ट ने कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करना है। इस कैटलिस्ट ने कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करना है। तो ऐसा लिखो तो ठीक है, ऐसा लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है। ओनली कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट आते ही ये अंडरस्टूड है कि ये एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। नाउ टेक सम मोर एग्जांपल्स। OH कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। हमने 4 कार्बन का अल्कोहल ले लिया और इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करना है। द रिएक्शन विल अकर बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ CH3, CH2, CH2, C.H। ऑक्सीजन को 2 एटम ऐड करने हैं, 1 and 2। सो 1, 2, 3 and 4। 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 यानी इथेन, 3 यानी प्रोपेन, 4 यानी ब्यूटेन। ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड, दिस बिकम ब्यूटेनोइक एसिड, दिस बिकम ब्यूटेनोइक एसिड। और ये 4 कार्बन का अल्कोहल है तो जिसको हम बोलेंगे ब्यूटेनॉल। तो मतलब ये हुआ कि जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। तो एथेनॉल से बनेगा एथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल से बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल से बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड। हम ये कहें फ्रॉम द corresponding अल्कोहल विल गेट द corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। तो ये रहा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एंड नाउ विल डिस्कस द इनकम्प्लीट और द पार्शियल ऑक्सीडेशन। कार्बन 1, कार्बन 2, CH3, CH2। यहाँ पर बेटे हमने पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है। पार्शियल का मीनिंग ये हुआ कि ऑक्सीजन कंटेन्स 2 एटम्स, हमें उसका 50% ऐड करना है तो उसको इस तरह से लिख देंगे। भाई ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय O2। पार्शियल ऑक्सीडेशन है, दैट मीन्स O2 ना ऐड होके O ऐड होगा। द रिएक्शन विल अकर बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है ये बाहर निकल जाएगा और रह जाएगा CH3C.H। तो इसको हमने लिखा, ये स्पेस खाली हो गया, H को लिखा, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया। इसको ऐसा लिखो तो ठीक है और इसको ऐसा लिखो CH3CHO तो ठीक है। 1 कार्बन एंड मीथेन एंड 2 यानी इथेन, इथेन प्लस L, दिस इज इथेनॉल। हम 3 कार्बन का अल्कोहल लें, OH कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, CH3, CH2, CH2। The reaction will occur by the elimination of water molecule। यहाँ से H2O है ये बाहर निकलेगा और जो बचा उसको लिख देंगे CH3, CH2, CHO। ये बन गया प्रोपेनॉल। दैट इज जितने कार्बन का हमारा अल्कोहल होगा उतने कार्बन का हमारा अल्डिहाइड बनेगा। तो एथेनॉल से बना एथेनॉल, प्रोपेनॉल से बना प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल से बनेगा ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल से बनेगा पेंटेनॉल। प्लीज सी हियर, यहां से ये रिजल्ट एक सामने आ रहा है कि ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन इनिशियल रिएक्टेंट अल्कोहल है, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और पार्शियल ऑक्सीडेशन
इनिशियल कंपोनेंट हमारा अल्कोहल है, बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन द अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बाय इनकम्प्लीट और द पार्शियल ऑक्सीडेशन द अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू अल्डिहाइड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने अल्कोहल लिया, मान लो उसका 50% ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें क्या मिला, अल्डिहाइड मिला, और उसका रिमेनिंग 50% ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि व्हाइल कन्वर्टिंग द अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो अल्डिहाइड बनेगा। कि जब भी हमारा अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो पहले अल्कोहल है वो अल्डिहाइड की फॉर्म में आएगा, फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में आएगा। ये कैटलिस्ट है कि इस केस में अल्कलाइन केमोनोफोर लोगे तो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कैटलिस्ट क्रोमिक एनहाइड्राइड लोगे तो अल्कोहल है वो अल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट है उस रिएक्शन को कंट्रोल कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन। इट इज ऑक्सीडेशन बिकॉज इट अकर्स बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज अबाउट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. One is combustion, another one is oxidation. The rest of the properties we will discuss in the next classes. Thank you.